جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر اشتیاق احمد اور اسٹوڈنٹس 10th کلاس کا آج ہم لیکچر نمبر 7 ڈسکس کریں گے اپنی لائیو کلاسز کے اندر، آن لائن کلاسز میں۔ اس میں اسٹوڈنٹس یونٹ نمبر 14 ہے 10th کلاس کا، جو آج ہم اس کا لاسٹ ٹاپک اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اوزون لیئر اور اس کی ڈپلیشن۔ جو اوزون لیئر ہے وہ بنتی کیسے ہے، اس کی کیا پراپرٹیز ہیں، وہ کہاں پائی جاتی ہے، اس کے پریفیکٹس کیا ہیں، وہ ٹوٹتی کیسے ہے، یہ سب سارا ہم نے آج اس اوزون کے ٹاپک کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اوزون ہوتی کیا ہے، اوزون کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹس ہے اوزون کیا ہے، اٹ از این ایلوٹروپک فارم آف آکسیجن۔ یہ آکسیجن کی ایلوٹروپک فارم ہے۔ ایلوٹروپک فارم مین کہ آکسیجن کے 3 ایٹمز آپس میں کمبائن کر کے پھر اوزون بناتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سمپل آکسیجن بھی ہے، ایک آپ کے پاس O2 بھی ہے، ایک آپ کے پاس اوزون O3 بھی ہے۔ تو یہ بیسیکلی تینوں ہی ایلوٹروپک فارمز ہیں، اور اس کے اندر جو اوزون ہے، تھرڈ جو اس کی ایلوٹروپک فارم ہے وہ کہلاتی ہے اوزون، اس کا فارمولا ہوتا ہے O3۔ It is an allotropic form of oxygen consisting of 3 oxygen atoms۔ یہ 3 آکسیجن کے ایٹمز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اوزون جو ہے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ بیسیکلی جو ہمارا ایٹماسفیئر کی جو سیکنڈ لیئر ہے، جس کو ہم نے پڑھا تھا اسٹریٹوسفیئر، اس کے مڈ کے اندر، اس کے بالکل درمیانی حصے کے اندر یہ والی اوزون کی لیئر پائی جاتی ہے، اور اس کی فارمیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایٹمک آکسیجن اور مالیکولر آکسیجن اس مڈ اسٹریٹوسفیئر کے اندر آ کر کمبائن کرتے ہیں اور پھر وہ اوزون بناتے ہیں۔ اس طرح سے اوزون کی فارمیشن ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے اوزون کے حوالے سے، تو اس میں لکھا گیا کہ O3 جو ہے بیسیکلی کہ ویسے تو سارے کے سارے ایٹماسفیئر کے اندر ہی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی جو میکسیمم کنسنٹریشن ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر جس بھی لیول پہ پائی جاتی ہے، میکسیمم لیول اس کی پائی جاتی ہے، اس حصے کو ہم کہتے ہیں اوزون۔ ٹھیک ہے، اوزون لیئر اس حصے کو کہتے ہیں، اس کو ہم اوزون لیئر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اوزون کی میکسیمم کنسنٹریشن ہے، میکسیمم اس کی اماؤنٹ ہے، وہ زمین سے اسٹریٹوسفیئر کے والے ریجن کے اندر 25 سے 30 کلومیٹر کی رینج میں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر 25 سے 30 کلومیٹر رینج ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس اگر یہ ایک ارتھ ہے، یہ ارتھ آپ کے پاس ہے، یہ اس سے ہائٹ ہے، یہ اوپر کی طرف ہائٹ ہے، تقریباً یہ 12 کلومیٹر ہائٹ زمین سے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ کے پاس اسٹریٹوسفیئر کا سٹارٹ ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ اس سے اوپر جائیں گے اس میں آپ تو تقریباً یہ 25 سے لے کر 30 کلومیٹر تک کی رینج کے اندر یہ اوزون پائی جاتی ہے۔ مین کہ یہ جو آپ کے پاس ریجن ہے زمین سے ہائٹ پر، یہ والا بیسیکلی O3 والا ریجن ہے، اوزون والا ریجن ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس اوزون ہے، یہ گلوب جو ہے نا، ہماری جو زمین ہے اسے گلوب کہا جاتا ہے۔ گلوب کے ارد گرد یہ ساری سراؤنڈ کی ہوتی ہے، اس میں گھیرا ڈالا ہوتا ہے نا اوزون کی لیئر میں، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ارتھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ارتھ کی حفاظت کرتی ہے، زمین کی حفاظت کرتی ہے۔ کس سے؟ ہارمفل الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے۔ یہ ریڈیشن بیسیکلی سن سے آ رہی ہے، سورج سے آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ سورج کے اندر لگاتار ہر وقت دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، لگاتار اس کے اندر کچھ ایٹم بم جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہائیڈروجن بم چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن بھی پیدا ہوتی ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے، جیسے لائٹ بھی پیدا ہوتی ہے جو ہماری زمین تک آتی ہے۔ زمین تک بیسیکلی الٹرا وائلٹ ریڈیشن بھی آتی ہے، لائٹ بھی آتی ہے، لائٹ کے پاس ہو کے زمین تک آ جاتی ہے، لیکن جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ کافی حد تک، میکسیمم حد تک اسی اوزون لیئر کے اندر ایبزورب ہو جاتی ہے۔ اوزون لیئر کے اندر یہ والی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز یہ سرو ہو جاتی ہیں، اور میکسیمم حد تک الٹرا وائلٹ ریز استعمال ہونے کے بعد اس اوزون
जिस वक्त ये जमीन सूरज से अलग हुई थी तो जमीन के इर्द गिर्द ये गलाफ जो था ना ओजोन का ये नहीं था। अब उसमें हुआ क्या, कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन के अंदर जमीन कुछ ठंडी हुई, उसमें कुछ जो थे रिएक्शन वो होना थोड़े से रिड्यूस हुए, ठंडी हुई जमीन, तो उसमें कुछ ना केमिकल रिएक्शंस पैदा होना शुरू हो गए, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस, कुछ ऐसी प्रोडक्शन हुई जिसकी वजह से ओजोन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इस जमीन के इर्द गिर्द फैलना शुरू हो गई। जब तक ओजोन नहीं थी तब तक अल्ट्रावायलेट रेज वो डायरेक्ट जमीन तक आ रही थी और जमीन पर जितनी भी जो पौधे वगैरह हैं, ये जानवर हैं, हशरात हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो भी प्रोड्यूस होते थे सारे उस अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से डैमेज हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनका जमीन तक आना महदूद हुआ, उसके बाद जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती थी सारी इसी ओजोन लेयर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती थी, जमीन तक नहीं आती। फिर जमीन के ऊपर जो भी लाइफ ने जन्म लिया, जो लाइफ पैदा हुई, यहाँ पर जानवर भी पैदा हुआ, पौधे हैं, ये जानवर हैं, वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करना शुरू हो गए। ये साइंस का कहना है, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ओजोन जो है वो पैदा होने के बाद लाइफ जो है वो जमीन के ऊपर एग्जिस्ट की थी। तो ये आपके पास है ओजोन के बारे में सारा इसका इंट्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये पाई कहाँ पर जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो डेंजर्स हैं वो क्या है, नुकसान क्या है। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है नॉर्मल कंडीशन में वो एक बैलेंस फॉर्म में रहती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जितनी ओजोन बनती है उतनी टूट भी रही होती है और जितनी टूट रही होती है उतनी उसके साथ बन भी रही होती है। तो ये एक बैलेंस फॉर्म के अंदर एक्शन जाना चल रहा होता है। पहले जैसे आपके पास है ना ओजोन लेयर जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, इसके अंदर ये वाला सिस्टम सारा चल रहा होता है। और होता क्या है कि आपके पास नॉर्मल कंडीशन में आम हालात के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन होती है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, इसमें चेंजिंग भी आ रही होती है। यदि ये जो आपके पास कांस्टेंट इसका रहना है, इसमें दो रिएक्शन बेसिकली बराबर है, जिसकी वजह से ओजोन की जो फॉर्मेशन है और डिप्लेशन है वो बिल्कुल इक्वली होती है और एक बैलेंस फॉर्म में होती है। तो ओजोन के लिए ना तो फिर टूटती है, ना ही उसमें कमी आती है, ना इसमें ज्यादती होती है। इतनी ओजोन लेयर टूटती होती है फिर बन जाती है। देखिए उसे कहते हैं दो आपके पास स्टेप्स हैं, दो रिएक्शन है जिसकी वजह से ओजोन सारी मेंटेन हो रही है। नंबर 1 ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के एटम के साथ, तब ओजोन की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, फॉर्मेशन। इसके बाद जब आप ओजोन O3 के ऊपर कहते हैं जब एटॉमिक ऑक्सीजन आकर रिएक्ट करती है तब आपके पास ओजोन का मॉलिक्यूल टूटकर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना देता है। ये क्या है, ये वाला आपके पास है डिकम्पोजिशन। तो ये जो रिएक्शन है ना ये दोनों तरफ चलता रहता है, मतलब ओजोन टूटती भी रहती है और ओजोन बनती भी रहती है, दोनों इसमें प्रोसेस होते रहते हैं। लेकिन ये होता है नॉर्मल कंडीशन में। जब कुछ भी नया कंपाउंड मिक्सअप हो जाता है, कोई डिकम्पोजिशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उसका क्या सिस्टम होता है वो आपको बताएगा। कहते हैं कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में से निकलते हैं, कंप्रेसर में से। उसके अलावा आपके पास जो एरोसोल स्प्रेज होती हैं जो खेतों में स्प्रेज वगैरह किए जाते हैं उनके अंदर भी वो खारिज होते हैं। तो वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो मॉलिक्यूल ज़मीन से ऊपर उठते हैं, जो कि उनकी एनर्जी ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल ज़मीन से ऊपर उठते हैं और ऊपर उठते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाते हैं ओजोन लेयर तक। ये जो ओजोन लेयर है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। ये जो ओजोन लेयर आपको यहाँ पे मैंने बताई थी, ये यहाँ से उठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते यहाँ पर जब पहुँचते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पर पहुँचकर उनके ऊपर जिस वक्त अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जिस वक्त अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और एटॉमिक कार्बन आपके पास हासिल होती है। कहते क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब इन पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो
हाई रिएक्टिव होता है, इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेजी के साथ हो सकता है। ये वाली करंट का एटम जो है ये जब पहुंचता है ना इसी ओजोन के पास, तो ओजोन में से एक ऑक्सीजन को अपने साथ ही कंबाइन कर लेता है। इस O3 में से एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम निकलकर इस Cl के साथ कंबाइन कर जाता है, बाकी यहाँ पे बच जाता है O2। जो O2 है वो यहाँ पर दिखाया गया है, आपके पास O2 की फॉर्मेशन हो जाती है और वो और Cl आपस में कंबाइन करके OCl ऑक्सीक्लोराइड आपके पास बना देते हैं। अब ये जो ऑक्सीक्लोराइड है बन तो जाती है, क्लोरीन ओजोन को तोड़ देती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है, खुद ऑक्सीक्लोराइड बन जाती है। ये ऑक्सीक्लोराइड थोड़ी ही देर में दोबारा से डिकम्पोज हो जाती है, इसमें दोबारा से ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं और सेपरेट होने से ऑक्सीजन अलग और क्लोरीन अलग, दोनों एटॉमिक फॉर्म में आपके पास अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो इस किस्म के दो ऑक्सीजन के एटम आपके पास बनते हैं, मतलब ये जो क्लोरीन यहाँ से निकली है यहीं पर बस नहीं कर देती, बल्कि ये मजीद आगे जाकर एक और यहाँ पर मजीद आपको समझाता O3 के साथ क्लोरीन का एटम मजीद जाके रिएक्ट करता है, उसमें से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ऑक्सीक्लोराइड फिर से बना देता है, दोबारा से उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और फिर से ये जो OCl है ये फिर से टूटती है एटॉमिक ऑक्सीजन और क्लोरीन के एटम के अंदर, एटॉमिक क्लोरीन में फिर से अलग हो जाती है। मतलब ये जो आपके पास रिएक्शन है ये वाला, ये रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। क्लोरीन के एटम ओजोन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, ऑक्सीक्लोराइड फिर से टूटती है, फिर ऑक्सीजन और क्लोरीन के एटम अलग अलग हो जाते हैं। ये क्लोरीन का एटम दोबारा से जाकर इस ओजोन को तोड़ता है और फिर से ऑक्सीक्लोराइड, फिर से ऑक्सीक्लोराइड से क्लोरीन का एटम बनता है। ये क्लोरीन फिर से इसी ओजोन के साथ जाके रिएक्ट कर जाती है और ये लगातार रिएक्शन है वो चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। अब इस रिएक्शन के लगातार चलने की वजह से क्लोरीन यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम करती है और जो ऑक्सीजन के एटम वन वन करके फ्री होते हैं, इस क्लोरीन से सेपरेट होते जाते हैं, वो दो क्लोरीन के एटम आपस में कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या हमारे पास O2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ये आपके पास इस तरह से ना ओजोन है ना उसके अंदर डिप्लेशन पैदा हो रही है, ओजोन टूट रही है और ओजोन होल भी बन रहा है, जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, बेसिकली लाइफ के लिए इंतहाई डेंजरस है कि अगर ओजोन होल पैदा हो जाता है हवा के अंदर तो उससे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन होल पैदा हो जाता है उससे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डायरेक्ट जमीन तक आ जाएंगी। अगर वो डायरेक्ट जमीन तक आएंगी देन वो डेंजरस होगी लाइफ के लिए, वो जिसकी लाइफ के ऊपर वो रेस पड़ेंगी उस लाइफ के अंदर डिफरेंट बीमारियां पैदा कर देंगी। फिर उतने से एरिया के अंदर जहां पर ओजोन होल बना हुआ है वहां से अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट जमीन तक आ रही है, उस हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा लाइफ को डिस्टर्बेंस होगी, लाइफ को डेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ना आपके पास ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर के अंदर लगातार खत्म हो रही है। तो ये आपके पास ओजोन का सिलसिला था। बाद में जस्ट ओजोन होल के बारे में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन और ये पहले कहाँ पर मतलब कब ये और कहाँ पर ये वाले पाए गए देखे गए, उसमें कहते हैं कि ओजोन होल क्या है, रीजन इन विच ओजोन लेयर डिप्रेस, वो वाला इलाका एटमॉस्फेयर के अंदर वो वाला इलाका, वो वाली जगह जहाँ पर ओजोन जो है वो टूटी हुई महसूस होती है, टूटी हुई दिखाई देती है, उस हिस्से को कहा जाता है ओजोन होल। और सबसे पहले 1980s के अंदर 1980 की दहाई में 1980s के अंदर सबसे पहले जो अंटार्कटिका जो एक पूरा बड़े आज़म है, बर्फ का बड़े आज़म है, उसके ऊपर ये ओजोन होल को सबसे पहले देखा गया था। और उसके बाद 1990s के अंदर यानी कि 1990 की दहाई के अंदर भी आर्कटिक एक जगह है उसके ऊपर भी ये ओजोन का एक पूरा होल देखा गया था, जो कि इंतहाई डेंजरस है, खतरनाक है। अगर इसमें इजाफा होता गया तो फिर मसलन मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये जो ना बड़े आज़म काफी हद तक बर्फ के बने हैं, अगर इनके ऊपर लगातार ओजोन होल बढ़ता गया और वहां से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट जमीन तक आती गई, इनके ऊपर पड़ती गई बर्फ के ऊपर, तो बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। जब वो सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे तो उससे समुद्रों की सतह बढ़ जाएगी। समुद्रों की सतह बढ़ने की वजह से
ساحلی علاقے سارے وہ پانی کی زد میں آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آج کا ٹاپک اوزون لیئر اور اس کی ڈپلیشن. امید ہے آپ کو سارا سمجھ آ چکا ہوگا. کل انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ سے نیکسٹ ایک دن ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بیٹا جی اللہ حافظ.